بات کریں گے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ریاست بنانا ایم کیو ایم میں بڑی بات نہیں کرتا، صرف ایم کیو ایم کو 5 سال ایک دفعہ مل جائیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ 5 سال میں ہم اس کو نیو یارک اور لندن بنا دیں گے، لیکن پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ ضرور بنا دیں گے۔ یہ لوکل باڈی سسٹم آئے گا تو لوکل لیول پر گلی گلی کا کونسلر کام کرے گا، یہ ان کو پسند نہیں ہے، ان کو کمشنر اور تھانے دار پسند ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے ذریعے غلام بنا کے رکھے۔ Teach the people of Pakistan and through electoral process we have to win the vote of the people, then we can form the government and we can change and bring reformation in the present constitution and delete the wrong things which are in the constitutions. This is my message to the present youth and generation is that Greek has no place on this planet. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں احتجاج کے لیے ایک جگہ مختص کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی خوشبخش شجاعت کی رہائش گاہ پر عمائدین کے ایک اجتماع سے ٹیلی فون پر خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ کراچی میں روز بروز احتجاجی ریلیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہر میں ٹریفک کے مسائل اور شہریوں کو پہنچنے والی پریشانیوں کے پیش نظر احتجاج کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص کر دی جائے اور باقی سارے شہر میں جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی عائد کر دی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق جمہوری، لبرل، سیکولر اور پروگریسو ریاست بنانا چاہتی ہے۔ سندھ میں بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاج جاری ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کہتے ہیں کہ بعض لوگ بلدیاتی نظام کو فرسودہ کمشنری نظام چاہتے ہیں جس میں لوگوں کو غلام بنایا جا سکے۔ قائد اعظم پاکستان کو تھیوکریٹک نہیں بلکہ لبرل، سیکولر اور پروگریسو ریاست بنانا چاہتے تھے۔ کراچی سے عمران خان کی رپورٹ۔ الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق لبرل، سیکولر اور ترقی پسند ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اگر 5 سال تک اقتدار ایم کیو ایم کو مل جائے تو پاکستان کو فرانس تو نہیں البتہ قائد اعظم کا پاکستان بنا دیں گے۔ ڈیفنس کے ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی خوشبخش شجاعت کی رہائش گاہ پہ عمائدین شہر کے اجتماع سے ٹیلی فونی خطاب میں ایم کیو ایم کے قائد نے کہا کہ ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ الطاف حسین نے کہا کہ شہریوں کو پہنچنے والی پریشانیوں کے پیش نظر کراچی میں احتجاج کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی جائے اور باقی سارے شہر میں جلوس اور ریلیوں پہ پابندی عائد کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ مصنوعی طریقے سے حل نہیں ہوگا، حل کے لیے پہاڑوں پہ جانے والے ناراض بلوچ رہنماؤں سے بات کرنی ہوگی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق جمہوری، لبرل، سیکولر اور پروگریسو ریاست بنانا چاہتی ہے اور پاکستان میں ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتی ہے جہاں بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، جنس، مسلک، عقیدہ اور مذہب سب کو برابری کی بنیاد پر حقوق حاصل ہوں اور سب کے جان و مال، عزت اور آبرو کا مکمل تحفظ کیا جائے اور حکومتی فیصلے مذہب اور مسلک کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرٹ کی بنیاد پر ہوں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈیفنس میں حق پرست رکن قومی اسمبلی محترمہ خوشبخش شجاعت کی رہائش گاہ پر عمائدین کے ایک اجتماع سے ٹیلی فون پر خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تاجروں، صنعتکاروں، بینکار، پروفیسرز، ریٹائرڈ افسران اور زندگی کے دیگر شعبوں کے ماہرین کے علاوہ نوجوان طلباء و طالبات اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ الطاف حسین نے قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم پاکستان کے تھیوکریٹک ریاست نہیں بلکہ ایسی لبرل، سیکولر اور پروگریسو ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں تمام مذاہب، فقہوں اور مسلکوں کے ماننے والے عوام برابر کے شہری ہوں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں، لیکن ایک مخصوص طبقے کی جانب سے قائد اعظم کے ویژن کو مسخ کیا گیا اور ملک میں فرقہ واریت پھیلائی گئی اور شیعہ سنی عوام کا قتل کیا گیا۔
इस मौके पर तकरीब के शरकान ने मुख्तलिफ इशूज के हवाले से MQM की पॉलिसी और अल्ताफ हुसैन के खैरात की भरपूर तायद और हिमायत की और उनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए। अल्ताफ हुसैन ने शरका के जवाबात देते हुए मजहबी फिरकावाराना हम आहंगी, तालीम, मईशत, सेहत, तवानाई के बहरान, बल्दियाती निज़ाम, अमन अमान, कम्युनिटी पॉलिसिंग और मुख्तलिफ अमूर के बारे में MQM की पॉलिसियों पर रोशनी डाली और MQM के फलाही इदारों की जानिब से बनाए जाने वाले आला मयार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर फलाही इक़दामात से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हम आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं, लिहाजा जो भी पाकिस्तान की बका पर यकीन रखता है उसे मुल्क में जारी फरसुदा निज़ाम को तब्दील करने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से कहा कि वो आगे आए, पुरअमन तरीकों से वोट के जरिए सही लोगों को मुंतखब करें। उन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम आएगा तो गली गली लोगों के मसाइल हल होंगे। बाज लोग बल्दियाती निज़ाम नहीं बल्कि ऐसा कमिश्नरी निज़ाम चाहते हैं जिसमें लोगों को गुलाम बनाया जा सके, इसीलिए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ आवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर अल्ताफ हुसैन ने गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि कराची में रोज रोज एहतजाजी रैलियों से शहर में ट्रैफिक के मसाइल और शहरों को पहुंचने वाली परेशानियों के पेश नजर कराची में एहतजाज के लिए कोई एक जगह मखसूस कर दी जाए और बाकी सारे शहर में जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इस मामले पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला मसनूई तरीके से हल नहीं होगा, पहाड़ों पर जाने वाले नाराज बलोच रहनुमाओं से बात करना होगी। कराची में टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि मुल्क की बका और सलामती के लिए कड़वे घूंट पीने होंगे। बलूचिस्तान का मसला मसनूई इक़दामात से हल करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती, रूठे हुए लोगों को मनाना होगा। अल्ताफ हुसैन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि कराची में एहतजाज के लिए कोई एक जगह मखसूस कर दी जाए और बाकी सारे शहर में जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि कराची में रोज रोज एहतजाजी रैलियों से शहर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं और शहरियों को परेशानी उठाना पड़ती है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि हम आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला मसनूई तरीके से हल नहीं होगा, पहाड़ों पर जाने वाले नाराज रहनुमाओं से बातचीत करना होगी। कराची के इलाके डिफेंस में रुकन कौमी असम्बली खुशबख्श शुजात के घर पर इमायदीन शहर से टेलीफोनिक खिताब में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बाज़ लोग बल्दियाती निज़ाम नहीं बल्कि ऐसा कमिश्नरी निज़ाम चाहते हैं जिसमें लोगों को गुलाम बनाया जा सके, इसीलिए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा अगर MQM का प्राइम मिनिस्टर आए और हमें 5 साल मिल जाएं तो हम मुल्क को फ्रांस तो नहीं अलबत्ता कायद आज़म का लिबरल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बना देंगे। उन्होंने शहरियों की परेशानियों के पेश नज़र गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि एहतजाज के लिए कोई एक जगह मखसूस कर दी जाए और बाकी कराची में जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि MQM पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन के मुताबिक जमहूरी, लिबरल, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव रियासत बनाना चाहती है। MQM के जारी करदा बयान के मुताबिक अल्ताफ हुसैन ने डिफेंस में रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा खुशबख्श शुजात की रिहाइशगाह पर अमायदीन से टेलीफोन पर खिताब में कहा कि हैदरी मार्केट में धमाका करके बोहरी कम्युनिटी के अफराद को हलाक और जख्मी किया गया। ये अमल इस्लाम की तालीमात और कायद आज़म के विजन के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मजहबी रवादारी, फिरकावाराना हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी MQM के मंशूर का हिस्सा है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला मसनूई तरीके से हल नहीं होगा, मसले के हल के लिए पहाड़ों पर जाने वाले नाराज बलोच रहनुमाओं से बात करनी होगी और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए कड़वे घूंट पीने होंगे। उनका कहना था कि MQM को 5 साल मिल जाएं तो मुल्क को कायद आज़म के विजन के मुताबिक बना देंगे। सिर्फ MQM को 5 साल एक दफा मिल जाए, हम ये तो नहीं कहते कि 5 साल में हम इसको न्यूयॉर्क और लंदन बना देंगे, लेकिन पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह जरूर बना देंगे। नाज़रीन, मकानी दारन वाले सूबा वज़ीर आग़ाज़ सिराज दुरानी ऐं मुतहिदा अॻवान रज़ा हारून जो चवणो थी निज़ाम ॿितो निज़ाम न आहे बल्कि हिकु ई निज़ाम आहे। MQM जे सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो आहे त नए मकान निज़ाम बाबति अवाम खे गुमराह कयो थो वञे। इन निज़ाम सां घिटी घिटी में माण्हुनि जा मसला हल थींदा। कराची जे डिफेंस वारे इलाइक़े में MNA खुशबख्श शुजात जी राहतगाह ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां वाॻियल माण्हुनि खे टेलीफोनिक खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन चयो त कुझु माण्हू फरसुदा कमिश्नरी निज़ाम जा हामी आहिनि त जीअं माण्हुनि खे ग़ुलाम बणाए सघिजे। उन वॾे वज़ीर ऐं गवर्नर खां मुतालबो कयो त कराची में एहतजाजनि लाइ का मख़सूस जॻह रखी वञे त जीअं रोज़ानो एहतजाजनि जे करे आम माण्हू ट्रैफिक समेत ॿिन परेशानियुनि खां बची सघनि।
बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अगर मुत्तहिदा का वजीर आजम आए और हमें 5 साल मिल जाएं तो हम मुल्क को फ्रांस न सही मगर कायद आजम का लिबरल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस में रुकन कौमी असम्बली खुशबख्श शुजात की रिहाइशगाह पर अमायदीन के इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा पाकिस्तान में ऐसा माशरा तश्कील देना चाहती है जहां बिला इम्तियाज रंग नस्ल, जबान, मसलक, अकीदा और मजहब सबको बराबरी की बुनियाद पर हुकूक हासिल हों और सबकी जानो माल और इज्जत व आबरू का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हुकूमती फैसले मजहब और मसलक की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पर हों। उनका कहना था कि मजहबी रवादारी, फ़िक़ा वाराना और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी MQM के मंशूर का हिस्सा है। अल्ताफ हुसैन ने कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि कायद आज़म पाकिस्तान को लिबरल, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव रियासत बनाना चाहते थे। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने मुख्तलिफ इशूज के हवाले से MQM की पॉलिसीज और अल्ताफ हुसैन के ख्यालात की भरपूर ताईद व हिमायत की और इनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए। बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के, जिनका कहना है कि MQM पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक लिबरल और सेकुलर रियासत बनाने जा रही है। रुकने कौमी असम्बली खुशबख्श शुजात की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ शोबाज़ाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद से टेलीफोन पर खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि MQM पाकिस्तान में ऐसा मुआशरा तश्कील देने की ख्वाहिशमंद है जहां बराबरी की बात पर सबको हुकूक हासिल हों और सबकी जान और माल और इज्जत और आबरू का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि MQM का वज़ीर आज़म आने की सूरत में पाकिस्तान को फ्रांस तो नहीं अलबत्ता कायद आज़म का पाकिस्तान जरूर बना देंगे। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि बल्दियाती निजाम के खिलाफ आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बास लोग ऐसा निजाम चाहते हैं जिसमें लोगों को गुलाम बनाया जा सके। कराची में अमायदीन से टेलीफोन पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक तरक्की पसंद रियासत बनाना चाहती है जहां हर शख्स को बराबरी की बुनियाद पर हुकूक हासिल हों। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए नाराज बलोच रहनुमाओं से बातचीत करना होगी। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला मसनूई तरीके में हल नहीं होगा। मसले का हल पहाड़ों से जान वाले नाराज बलोच रहनुमाओं नाल गलबात करनी होगी ते पाकिस्तान की बका सलामती लिए कड़वे घूंट भी पीने होंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार हक परस्त रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा खुशबख्श शुजात की रिहाइशगाह से अमायदीन के एक इज्तिमा नाल टेलीफोन पर खिताब करना किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि MQM पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक जमहूरी, लिबरल, सेकुलर ते प्रोग्रेसिव रियासत बनाना चाहती है ते पाकिस्तान विच इहो जिहा मुआशरा तश्कील देना चाहती है जिथे बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, ज़बान और जिन्स, मुसल्लिक, अकीदा ते मजहब सब नूं बराबरी की बुनियाद पर हकूक हासिल होन ते सबकी जानो माल ते इज्जत आबरू का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ते हुकूमती फैसले मजहब ते मुसल्लिक की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पर होन। अल्ताफ हुसैन ने कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर का हवाला दिंदियां कहा कि कायद आज़म पाकिस्तान को थियोक्रेट रियासत पर नहीं बल्कि इहो जी लिबरल, स्कॉलर ते प्रोग्रेसिव रियासत बनाना चाहते सन जिथे तमाम मज़ाहिब, फिरके ते मुसलकां दे मनन वाले अवाम बराबर दे शहरी होण ते उन्हां नूं मुसावी हकूक हासिल होण पर एक मखसूस तबके वालों कायद आज़म के विजन नूं मसख कर दिता गया है ते मुल्क विच फिकावारियत फैलाई गई ते शिया सुन्नी अवाम का कत्ल किया गया। हाल ही में हैदरी मार्केट में धमाका करके बोहरी कम्यूनिटी के अफराद में हलाक जख्मी किया गया। ये अमल इस्लाम की तालीमात से कायद आज़म के विजन के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बलदियाती निजाम आएगा तो गली गली लोगों के मसाइल हल होंगे। बाज़ लोग बलदियाती निजाम नहीं बल्कि इहो जिहा कमिश्नरी निजाम चाहते हैं जिहदे विच लोगों को गुलाम बनाया जा सके। इसलिए बलदियाती निजाम के खिलाफ अवाम को गुमराह करने की कोशिशां कीतियां जा रही ने। इस मौके पर अल्ताफ हुसैन ते गैर नसीम ने वज़ीर आला सिंध ने मुतालबा किया कि कराची विच रोज़ बरोज़ एहतजाजी रैलियां नाल शहर में ट्रैफिक के मसाइल ते शहरियों को पहुंचने वाली परेशानियों के पेश नज़र कराची में एहतजाज लिए कोई एक जगह मखसूस कर दी जाए ते बाकी सारे शहर में जुलूसों ते रैलियों ते पाबंदी आयद कर दी जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो आहे त बलदियाती निजाम खिलाफ अवाम खे गुमराह कयो पियो वञे। कुछ माण्हू बलदियाती बदिरां मुद्दे ख़ारिज निजाम चाहिनि था। लंडन मां जारी कयल पंहिंजे बयान में अल्ताफ हुसैन चयो त कराची में रोज़ रोज़ एहतजाज सबब माण्हू परेशान आहिनि।
उन्हें चयो त खेनि 5 साल मिली वञनि त क़ाइदे आज़म वारो मुल्क ठाहे ॾेखारींदा। अल्ताफ हुसैन चयो त क़ाइदे आज़म पाकिस्तान खे लिबरल ऐं प्रोग्रेसिव रियासत बणाइण पियो चाहियो। संदसि चवणु हो त हू अॼु बि पत्थर वारे दौर में रही रहिया आहिनि। MQM मुल्क खे तरक़ी पसंद रियासत बणाइण थी चाहे। मुल्क जी तरक़ी लाइ अवाम खे अॻिते अचणो पवंदो। मुतहिदा सरबराह चयो त बलोचिस्तान जो मसइलो मसनूई अंदाज़ सां हल न थींदो। इन लाइ जबलनि ते चढ़ी पियल नाराज़ बलोचनि सां ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। अल्ताफ हुसैन चयो त पाकिस्तान जी बका लाइ कड़ो ढुक पीअणो पवंदो। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला मसनूई तरीके से हल नहीं होगा। मसला के हल के लिए पहाड़ों पर जाने वाले नाराज बलूच रहनुमाओं से बात करना होगी और पाकिस्तान की बकाओ सलामती के लिए कड़वे घूंट पीने होंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार हक परस्त रुकन कौमी असम्बली मुहतरमा खुशबख्श शुजात की रिहाइशगाह पर अमायदीन के एक इज्तिमा से टेलीफोन पर खिताब करते हुए किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि MQM पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक जमहूरी, लिबरल, सेकुलर और प्रोग्रेसिव रियासत बनाना चाहती है और पाकिस्तान में ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहती है जहां बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, जुबान, जिन्स, मसलक, अकीदा और मजहब सबको बराबरी की बुनियाद पर हकूक हासिल हो और सबकी जानो माल और इज्जत व आबरू का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हुकूमती फैसले मजहब और मसलक की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पर हो। अल्ताफ हुसैन ने कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि कायदे आज़म पाकिस्तान को थियोक्रेटिक रियासत नहीं बल्कि ऐसी लिबरल, सेकुलर और प्रोग्रेसिव रियासत बनाना चाहते थे जहां तमाम मज़ाहिब, फिकों और मसलकों के मानने वाले आवाम बराबर के शहरी हो और उन्हें मुसावी हकूक हासिल हो। लेकिन एक मखसूस तबका की जानिब से कायदे आज़म के विजन को मसख किया गया और मुल्क में फिरकावारियत फैलाई गई और शिया सुन्नी अवाम का कत्ल किया गया। हाल ही में हैदरी मार्केट में धमाका करके बोहरी कम्युनिटी के अफराद को हलाक और जख्मी किया गया। ये अमल इस्लाम की तालीमात और कायदे आज़म के विजन के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम आएगा तो गली गली लोगों के मसाइल हल होंगे। बाज लोग बल्दियाती निज़ाम नहीं बल्कि ऐसा कमिश्नरी निज़ाम चाहते हैं जिसमें लोगों को गुलाम बनाया जा सके। इसीलिए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस मौका पर अल्ताफ हुसैन ने गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुतालिबा किया कि कराची में रोज रोज एहतजाजी रैलियों से शहर में ट्रैफिक के मसाइल और शहरियों को पहुंचने वाली परेशानियों के पेश नजर कराची में एहतजाज के लिए कोई एक जगह मखसूस कर दी जाए और बाकी सारे शहर में जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। जमहूरी उधर MQM कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि बाज़ लोग ऐसा फरसूदा कमिश्नरी निज़ाम चाहते हैं जिसमें लोगों को गुलाम बनाया जा सके। इसीलिए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अवाम को गुमराह करने की कोशिशें जारी हैं। कराची में रुकन कौमी असम्बली खुशबख्श शुजात की रिहाइशगाह पर अमायदीन के इज्तिमा से टेलीफोन में खिताब करते हुए उनका कहना था कि अगर मुल्क में MQM का वजीर आजम आए और हमें 5 साल मिल जाएं तो हम मुल्क को कायदे आज़म का लिबरल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बना देंगे। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि हम आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। फरसूदा निज़ाम को तब्दील करने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए लोगों को आगे आना होगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कराची समेत सिंध भर के पख्तून MQM को बड़ी तादाद में वोट देंगे। बलोचिस्तान के हवाले से उनका कहना था कि मसले के हल के लिए नाराज बलोचों से बातचीत करना होगी।